संसद सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा। मणिपुर मुद्दे पर डेरेक ओब्रायन हुए आग बबूला। This means no other business till 267 is discussed first. Where does 176 come into this? There's no 176. It is on 267 and we want a discussion here on Manipur. We want a discussion and the Prime Minister has to open his mouth. One second. Manipur. 267 is a notice. You must rule on 267. You roll on 267. 176 will come later. I'll come to. No, sir. I'll come to 267 also. Next item is 267. One second. Sit down. Leader of the opposition, please. Request you. One second. Everyone. Yes, go ahead, sir. Sir, respected sir, I'm very sorry, sir. You always speak about the procedure and all other things. Is anything wrong with it, sir? No, I am telling you. Why are you sorry about it? No, 1 minute. Why should a senior man like to be sorry about it? But I complete. What is there to be sorry about? I if care complete. about procedure? You allow me to. Next Go ahead, sir, sentence. But don't Sir? be sorry about it. All of us must follow procedure. No, I am must believe in the rule of following. law. Sir, I am following. That's why I Please, kept quiet. I raised my finger. You are holding the floor, sir. I allow you to hold the floor. Attract you. But Continue, sir. how a leader of the house suddenly get up and we are ready because the agenda is not read fully because we have also given notice 267 suspension of business under rule 267 on this day and that is pertaining to thus you have to suspend all other business and take up this, not half an hour, not on Honorable members, Sir, honorable members, let call I Pradhan one Mantri give statement. One second. We will discuss. One second. Honorable members, we have business listed. 267 is the next item. I have to go sequentially. I will be taking all issues. But let me tell honorable members, one second. Let me tell honorable members, short duration discussion, take your seat. Short duration discussion has 3 facets. One, every member of the house is entitled to give a notice for short duration discussion. Honorable members have availed that opportunity and they have sent notices to me. I have considered those notices. The second stage is that under the rule, under the mandate of the rule, I have to consult date and time from the leader of the house. That is, one second. Sir, I have a point of order. Yes. Sir, One second. my point of order is only one. One. It is on page 92. And the rule here, sir, is very clear. Which rule? 267 rule. I'm reading 267, the first line. Page 92 says, I am on this any agenda. rule be suspended in its application to a motion to the business listed before the council of the day. The rule in question shall be suspended for the time being. This means no other business till 267 is discussed first. Where does 176 come into this? There's no 176. It is on 267 and we want a discussion here on Manipur. We want a discussion and the Prime Minister has to open his mouth. One second. Manipur. How can you Honorable members. How is the Prime Minister One of second. India? How is the Prime Minister? Honorable. और वहीं आप देखिए संसद में तो बवाल है ही, संसद से सड़क तक किस तरह से हंगामा जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस भी आज मणिपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। महिलाएं आपको दिख रही हैं। क्या कार्रवाई कर रही है वो? अपनी बेटी पे जब बात आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं निकली? आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती है। ऐसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर तो देश पे काला धब्बा
मैम सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? क्या मांगे करे सरकार से? गूंगी बैठी सरकार। अगर ये सरकार सही में देश हित में सोचता है, लोगों के हित में सोचता है, ये तो सरकार तुरंत ये पद से सारे पद को मोह त्याग करके अपना फर्ज महिलाओं के प्रति 50% बहनों के प्रति निभाएंगे। फिर पता चलेगा कि उनके जो झूमरे थे, जो उनके जो सारे स्लोगन थे, ये ना सिर्फ एक चुनावी जुमला है, पर सच्चाई में वो उसे निभा भी सकते हैं। विपक्षी बैठक की दूसरी मुलाकात में गठबंधन के नाम पर मुहर लग गई और नाम रखा गया इंडिया, मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के एक दिन बाद ही उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज कर दी गई। गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर दिल्ली के 12 खंबा पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत डॉक्टर अवनीश मिश्रा नाम के एक शख्स ने की है। शिकायत में कहा गया है कि 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का अनुचित उपयोग किया है, इसका चुनाव में गलत इस्तेमाल होगा। गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताते हुए शिकायतकर्ता डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने पार्टियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनकी माने तो चुनाव में अनुचित व्यक्तित्व के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। 26 राजनीतिक दलों ने देश के नाम का दुरुपयोग किया है। आपको बताया तो केस प्रतीक अधिनियम की धारा 2C के तहत दर्ज किया गया है। प्रतीक और नाम अधिनियम के मुताबिक ये निशानों और नामों के आधिकारिक इस्तेमाल को नियंत्रित करता है, ताकि उनके अनुचित उपयोग से बचा जा सके और राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा कर सके। इसके अलावा अगर प्रतीक अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो प्रतीक अधिनियम की धारा 5 में किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है और शिकायत में भी इसी का जिक्र है। वहीं मंगलवार को महाराष्ट्र के बीजेपी नेता आशुतोष दुबे ने भी इस नाम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि इंडिया का इस्तेमाल विपक्ष ने राजनीतिक फायदे के लिए किया और इसने देश की गरिमा का अनादर किया है। मेरा मानना है कि इस मामले में आपके हस्तक्षेप से हमारे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने और उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी जिन पर हमारा देश खड़ा है। आपको बता दें कि विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की टैगलाइन जीतेगा भारत भी तय कर दी गई है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस टैगलाइन को क्षेत्रीय भाषाओं में भी तय किए जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक विपक्ष के कई नेताओं की सहमति और प्रयास के बाद ये टैगलाइन चुनी गई है। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार के रुख को लेकर हर कोई असमंजस में है। यूं तो वो शिंदे सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन उनका बार बार चाचा शरद पवार से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है और सियासत में नए कयासों को जन्म दे रहा है। इतना ही नहीं, इस कड़ी में बीते दिन अजीत पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि एनसीपी से बगावत करने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात रही। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के कई विधायकों के साथ विधान भवन में जूनियर पवार से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं दोनों की मुलाकात के बाद अब अटकलों का बाजार गर्मा गया है। हालांकि इस मुलाकात के दोनों ही नेता शिष्टाचार करार दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस मुलाकात के बाद से ही महाराष्ट्र समेत दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। बता दें, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में पहले शरद पवार से 3 दिनों के अंदर 3 मुलाकात और अब अजीत पवार की मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि अजीत पवार एक बार फिर से यू टर्न ले सकते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अजीत पवार और उनके समर्थकों पर दल बदल कानून लागू होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में किसी भी खतरे से बचने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। मुंबई की सियासी गलियों में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के बाद राज्य में फिर से महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए की सरकार बन सकती है और अजीत पवार उसमें मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इस सूरत में जूनियर पवार अपने समर्थक विधायकों संग एनसीपी में वापसी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं कवायद के बीच अजीत समर्थकों की शरद पवार से कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। अगले साल महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में अजीत के मुख्यमंत्री बनने की सूरत में दोनों पक्षों के लिए विन विन कंडीशन हो सकती है। देश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई शुरू हो चुकी है। देश के हर नेता की नजर उत्तर प्रदेश पर है। राज्य में 80 सीटें हैं। ऐसे में जिसने यूपी जीता उसके सर 2024 का ताज सज सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जंग इतनी आसान नहीं है। यहाँ जितनी पार्टियां हैं उससे भी ज्यादा हैं विचारधाराएं। क्या सपा, क्या बसपा और क्या बीजेपी, जिसके साथ जनता है वो ही किंग मेकर है। दरअसल यूपी की राजनीति में परिवार के बीच विचारधारा की लड़ाई का मुद्दा खूब गर्माता रहा है। कभी समाजवादी पार्टी तो कभी अपना दल। एक ही परिवार के 2 सदस्य 2 अलग अलग विचारधाराओं के साथ दिखते रहे हैं।
इसमें सबसे अहम होता है अपनी ताकत का प्रदर्शन। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के मामले में भी यही दिखता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो अपना दल हैं। एक केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस, जो बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में थी, और दूसरी उनकी मां कृष्णा पटेल की अगुवाई वाली अपना दल कमेरावादी, जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अनुप्रिया और पल्लवी के पिता डॉक्टर सोनेवाल पटेल हैं। सोनेवाल पटेल ने अपना दल नाम की पार्टी बनाई थी। इसी पार्टी पर वर्चस्व की जंग दोनों बहनों के बीच चल रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी बनाया है, जिसकी अध्यक्ष उनकी मां कृष्णा पटेल हैं। उनकी पार्टी का सपा के साथ गठबंधन है। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी के उपाध्यक्ष हैं। पल्लवी ने यूपी विधानसभा चुनाव में राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से शिकस्त दी थी। सपा गठबंधन के उम्मीदवारों से पहचानी जाने वाली पल्लवी पटेल भाजपा की सहयोगी, अपना दल मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। 2014 में अपना दल अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने पल्लवी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। तब पल्लवी को उपाध्यक्ष बनाए जाने का विरोध उनकी छोटी बहन अनुप्रिया पटेल ने किया। अनुप्रिया का कहना था कि पार्टी के संविधान में उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं है, इसीलिए पल्लवी की नियुक्ति असंवैधानिक है। पार्टी में अनुप्रिया और कृष्णा पटेल गुट में विवाद बढ़ता गया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। 2016 में पार्टी दो धड़ों में बंट गई। अपना दल को लेकर बीजेपी की मजबूरी ये है कि स्वतंत्र रूप से किसी प्रमुख कुर्मी नेता को तैयार नहीं कर पाने की वजह से कुर्मी वोटों के लिए पार्टी की पूरी निर्भरता यूपी में सिर्फ और सिर्फ अपना दल पर है। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस को 18 सीटों के लिए टिकट दिया, जबकि अपना दल के को एसपी से 6 सीटें मिली। अब इस बार भी समीकरण वैसे ही है। दोनों बहनें एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि दो बहनों की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा।